Hello children, welcome to class 1 computers. Children, this is your computer book IT Planet, my bits and bytes computer series 1. So children, I welcome you all once again to the computer class. As you know children, in our previous video we were doing chapter 3. Chapter 3 is children uses of computer. So in this chapter children, we have studied about different uses of computer. As we know children, computer does lot of work for us, it does many tasks for us. That is why we can say computer is a wonderful machine. So children, in this chapter till now we have studied that computer is a wonderful machine as it does lot of tasks for us. So children, as I told you in the previous video कि हमने बहुत सारी मशीनें पढ़ी हैं और सब हमारे लिए कोई ना कोई काम करते हैं और इसी तरह से चिल्ड्रन कंप्यूटर भी एक मशीन है एंड इट इज़ मेड बाय मैन. बट कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल मशीन. इट इज़ much different from the other machines which we use in our day-to-day life. So क्योंकि वो हमारे लिए भी काम करते हैं, लेकिन एक काम करते हैं या दो काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा मशीन है जो हमारे लिए बहुत सारे काम करता है. That means it does lot of tasks for us. And children, that is why these things have made this computer a wonderful machine. That is why we can say computer is a wonderful machine. So children, till now we have studied that computer, using the computer we can draw and color, using the computer we can solve problems, using a computer we can play games, and using a computer we can watch cartoons and movie. So children, let us move further into the chapter and read the remaining part of the chapter. So before that, let's read the part which we have already completed and try to recall what we have done in our previous video. So children, let's start. So children, this is chapter 3, uses of computer. In our previous video we had started this chapter and we had completed some of the topics. Children, let us recall and then we will move further into the chapter. So children, as you know, this is Lappy, and Lappy is the one who gives all the information regarding the computer. So children, Lappy said that computer is a wonderful machine, or we can say Lappy says how wonderful a computer is. Why? So we children say what makes a computer wonderful, how it is a wonderful. अगर हम लैपी कहता है कि कंप्यूटर एक वंडरफुल मशीन है या कंप्यूटर वंडरफुल है, तो द क्वेश्चन अराइजेस कि what makes a computer wonderful, कैसे ये वंडरफुल है. So Lappy says there are many tasks that a computer does for us. So as a computer does lot of things for us, as a computer does lot of tasks for us, as I told you children, task का मतलब होता है work. क्योंकि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत सारे काम करता है, इसलिए इट इज़ अ वंडरफुल मशीन. तो अब लैपी ने तो कह दिया इट डज लॉट ऑफ थिंग्स. अब नाउ दीज टू चिल्ड्रन आस्क्स व्हाट आर दोज टास्क. तो वो कौन से काम है जो लैपी करता है विच मेक्स इट अ वंडरफुल मशीन. सो वेरी कॉन्फिडेंटली द लैपी सेज, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो लैपी कितनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, ओ फ्रेंड्स लेट्स हैव अ लुक. और वो कहता है कि चलो देखते हैं, यानी ओ फ्रेंड्स लेट्स हैव अ लुक, चलो देखते हैं क्या क्या काम कंप्यूटर करता है और क्यों वंडरफुल है. सो सबसे पहला टास्क डन बाय द कंप्यूटर इज चिल्ड्रन ड्राइंग एंड कलरिंग. सो इट इज़ वन ऑफ द work or the task which we all enjoy doing, whether we are small kids or we are grown ups और हम teenagers हैं, सबको ड्राइंग और कलरिंग करना पसंद होता है. और चिल्ड्रन, ड्राइंग और कलरिंग के थ्रू हम अपने दिमाग को स्टेबल करते हैं और हम अपने दिमाग को रिफ़्रेश करते हैं, जिससे कि हम वापस अपने दिमाग को पढ़ाई में लगा सकें. जब हम कोई भी काम करके थक जाते हैं तो हम सोचते हैं कुछ ऐसा काम करें जिससे हम रिफ़्रेश हो सकें और हमारा जो एनर्जी है हम वापस अपने पढ़ाई में लगा सकें. क्योंकि चिल्ड्रन, द मेन पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज़ टू स्टडी एंड बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ. ठीक है, तो जब बार बार मम्मी हमको पढ़ने को कहती है और हम बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ के थक जाते हैं, तो वी फील लाइक डूइंग समथिंग विच वी एन्जॉय डूइंग, जिसे करके हमें मज़ा आता है और जिसे करके हम एन्जॉय करते हैं. तो ऐसा काम करने के बाद फिर वापस हमारा दिमाग रिफ़्रेश हो जाता है, सो दैट वी कैन डू द वर्क विच इज़
वर्क लाइक स्टडीज़। और स्टडीज़ आप सभी जानते हो, पढ़ाई करने के लिए हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, हाँ, और हमें कुछ देर बैठना पड़ता है कंटिन्यूसली, वी नीड टू सिट फॉर आवर्स। तो इसके लिए वी नीड टू कंसंट्रेट आवर माइंड एज वेल एज वी मेक आवर बॉडी सिट एंड डू दैट वर्क। इसके लिए चिल्ड्रन हम बहुत ज़्यादा देर तक अगर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने दिमाग को थोड़ा स्टेबल करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं जिसे करके हमें मज़ा आता है। तो यहाँ पे पढ़ाई के अलावा हम पूरे दिन ड्राइंग नहीं कर सकते, हम पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर सकते, पूरे दिन गेम्स नहीं खेल सकते। सो वी शुड डू एवरीथिंग इन अ एक्यूरेट मैनर और इन अ प्रॉपर वे। और समय समय पे हमें हर काम करना है, ताकि हमें कोई भी ज़्यादा, एवरीथिंग इन एक्सेस इज इंजूरियस और हार्मफुल। कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए नुकसान करती है। अगर हम पूरे दिन टीवी देखेंगे हमारी आंखें ख़राब हो जाएंगी, हम पूरे दिन मोबाइल देखेंगे पे गेम खेलेंगे हमारी आंखें ख़राब हो जाएंगी, या फिर हम पूरे दिन कलरिंग ही कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे तो भी हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं। तो टाइम टू टाइम हमें थोड़ा थोड़ा हर काम करना चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ हमारे लिए नुकसान ना हो और कोई भी चीज़ हमारे लिए नेगेटिव ना जाए। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट and it should be done in a proper way as well as it should be done in a मतलब for some time only, not in excess। तो लिमिट में करना चाहिए, हमें बहुत एक्सेस में नहीं करना चाहिए। तो हियर चिल्ड्रन, आप जब थक जाते हो पढ़ने से तो आप ड्राइंग कर सकते हो, और कंप्यूटर पे ड्राइंग करने से हमें कोई किसी भी चीज़ का वेस्ट हम नहीं करेंगे, ना तो पेपर वेस्ट होगा, ना कलर वेस्ट होगा, और ना तो हमें डांट पड़ेगी। इसलिए कंप्यूटर पे ड्राइंग करने में हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं, क्योंकि शेप्स आर देयर इन द ड्राइंग करने के लिए वहाँ पे हमारे पास शेप्स होते हैं। यूजिंग द शेप वी कैन ड्रॉ, एंड यूजिंग दी शेप्स वी कैन ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स ऑल्सो। तो इस तरह से हम मज़े से ड्राइंग कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी ईजी टू ड्रॉ यूजिंग द कंप्यूटर। सो इट इज़ वन ऑफ द टास्क विच मेक्स आवर लाइफ अ बिट इंटरेस्टिंग, और हमारे लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। सो चिल्ड्रन, सॉल्विंग सम्स। अब सम सॉल्व करने के लिए चिल्ड्रन कभी कभी हमारे पास कुछ सम्स ऐसे होते हैं विच वी आर नॉट एबल टू डू। थोड़े ट्रिकी सम्स होते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट सम्स होते हैं, तो वी कैन डू सम्स और वी कैन सॉल्व सम्स यूजिंग द कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर को यूज़ करके भी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इट इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग सम्स। सो एंड चिल्ड्रन, यू कैन डू योर सम्स वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। इससे वी सेव आवर टाइम एज वेल एज हमारा कोई गलती भी नहीं होती, हमें सही सही आंसर भी मिल जाता है। सो दिस इज़ अनदर टास्क विच वी डू यूजिंग द कंप्यूटर। So children, another work about which we have studied in our previous video, playing games. It is another task of our interest children. इसे करके भी हमारा दिमाग फ्रेश होता है, फिर हम वापस अपना पढ़ाई में दिमाग लगा सकते हैं। तो हम जब पढ़ करके थक जाते हैं तो हम गेम्स भी खेल सकते हैं। और आजकल तो हम पूरे टाइम घर में रहते हैं, हमारे पास कहीं और घूमने जाने का या फिर बाहर खेलने जाने का ऑप्शन नहीं होता। तो इट इज़ वेरी ईजी एंड इट इज़ वेरी good to play games with computer. Children, when we play games in computer, we do our mental exercise also. हमारे दिमाग का भी एक्सरसाइज होता है, लेकिन as I told you कि everything should be in limit. किसी का एक्सेस नहीं होना चाहिए। वी कांट डू एनीथिंग इन एक्सेस। दिन भर हम ड्राइंग नहीं कर सकते, दिन भर हम कलर नहीं कर सकते, या फिर दिन भर हम गेम्स नहीं खेल सकते, दिन भर हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो कोई भी काम हम लगातार नहीं कर सकते, हम हर काम को लिमिट में करेंगे। तो हियर इट इज़ अनदर टास्क विच इज़ डन बाय द कंप्यूटर। वी कैन प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स यूजिंग अ computer. We can play boxing, cricket, car racing, ludo, snake and ladder. Then children, we can play chess also. So these are the games, and there are many more games which can play using the computer. So children, next one is children watching movies and cartoons. Next is watching movies and cartoons. As you know children, we can watch movies as well as cartoons using a computer. So children, if you are watching movie or cartoon in a television children, आपके पास चॉइस नहीं रहता, आपको जो टीवी में आ रहा है आप वो वॉच करोगे। लेकिन यूजिंग अ कंप्यूटर यू कैन वॉच मूवी और कार्टून ऑफ योर ओन चॉइस। आप अपने चॉइस का
कंप्यूटर पे मूवी या कार्टून देख सकते हो. सो यहाँ पे CD लगा करके, या समटाइम्स यू कैन ऑल्सो यूज़ पेन ड्राइव फॉर वॉचिंग मूवी और कार्टून, और उसके बाद आराम से आप अपने घर में बैठ करके कार्टून्स और मूवी देख सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो वॉच कार्टून्स ऑफ योर ओन चॉइस. फॉर एग्जाम्पल स्पाइडरमैन, डोनाल्ड डक, या कोई और आप अपना मूवी देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो. सो चिल्ड्रन, वी हैड कंप्लीट स्टडीड till here in our last previous video. Now today we are going to start from this page. So from here we are going to start today. So children, today we are going to read page number, start from page number 22. So here children, some of the tasks were left. We will be reading about these in detail. So here children, our next task done by the computer is playing music. So children, we can also play music using the कंप्यूटर. आपको पता है कि हम कंप्यूटर से म्यूज़िक भी सुन सकते हैं. अगर आपको कंप्यूटर से अपने मनपसंद का कोई भी म्यूज़िक सुनना है तो यू कैन अटैच स्पीकर्स टू द कंप्यूटर एंड वॉच मूवीज़. सो कंप्यूटर्स कैन, लैपी सेज, कंप्यूटर्स कैन प्ले म्यूज़िक फॉर यू. तो कंप्यूटर में आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं. तो लैपी सेज कंप्यूटर कैन प्ले म्यूज़िक for you. You can listen to songs and rhymes with the help of speakers attached to the computer. So children, here you can see this is one speaker and this is another speaker. So here we have attached two speakers in order to listen to the music. तो आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो, आप गाने सुन सकते हो और राइम्स भी सुन सकते हो. चिल्ड्रन, कभी कभी राइम्स हमको नहीं पढ़ना आता तो हम सुन करके भी कंप्यूटर के थ्रू लर्न कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि हाउ टू recite a rhyme. So children, you can listen to songs and rhymes with the computer with the help of speakers attached to the computer. So speakers help us to listen to the music or rhymes. This is another task which is done by the computer. The next one is typing. This is another important task which we usually do using the computer. जैसा कि आप जानते हो children, computers can type words, sentences and number. कंप्यूटर को यूज़ करके हम words टाइप कर सकते हैं, sentences टाइप कर सकते हैं और numbers टाइप कर सकते हैं. So children, computers can type words, sentences and numbers. अब ये जो word, sentences और number कैसे टाइप कर सकते हैं? As I told you children, the keyboard has small buttons. Keyboards में छोटे छोटे buttons रहते हैं. Using these buttons children, और इन buttons पे you have in some of the buttons have alphabet starting from A to Z, and using these alphabet you can type letters, words और sentences. आप शब्द लिख सकते हो, वर्ड्स लिख सकते हो या सेंटेंसेस लिख सकते हो. मतलब आप अक्षर लिख सकते हो या लेटर्स लिख सकते हो, वर्ड्स लिख सकते हो एंड सेंटेंसेस लिख सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन राइट नंबर्स. आप काउंटिंग्स लिख सकते हो, यू कैन डू कैलकुलेशंस एंड यू कैन राइट टेबल्स ऑल्सो. सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टास्क विच वी यूजुअली डू यूजिंग द कंप्यूटर. हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में भी हम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं. हम कुछ भी लिख सकते हैं. देयर ऑल्सो यू कैन यूज़ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सो चिल्ड्रन, आप वर्ड्स लिख सकते हो, सेंटेंसेस लिख सकते हो एंड नंबर्स लिख सकते हो. यू कैन टाइप योर नेम, काउंट टेबल्स, डू मैनी अदर things on the computer using a keyboard. Because why do we use keyboard for writing and doing calculation? Because keyboard has small buttons which have, on those small buttons there are numbers and alphabets. अल्फ़ाबेट को लेकर के हम सेंटेंसेस लिख सकते हैं और नंबर्स को यूज़ करके वी कैन डू calculations, we can do we can write countings, we can write tables also. So in this way children, we can type anything we want on the computer. Then children, sending and receiving message, this is another important thing children. कंप्यूटर से हम स्कूल के मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं. आपके फादर आपके ऑफिस के उनके ऑफिस के मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं. योर मदर कैन कम्युनिकेट विथ हर फ्रेंड्स यूजिंग द मेल. और उसके बाद चिल्ड्रन, हम अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट में रह सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नाउ डेज ऑल द मेल्स आर रिसीव्ड और सेंट टू द स्कूल्स, और वी गेट मैसेजेस फ्रॉम द स्कूल. ऑल दीज आर डन यूजिंग द कंप्यूटर. सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड
for sending and receiving the messages. It can be from the offices, it can be from the relatives, it can be from the other sources, or it can be from the school. तो हम कंप्यूटर को यूज़ करके मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं, और वी कैन be in connection with the surrounding. So you can send messages to your friends, relatives anywhere in the world within a few seconds. You can also get a reply from them. So here children, हम ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, ऑनलाइन मैसेजेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसके बाद, और ये साइड बाय साइड होता है, ऐसा नहीं है कि हमको वेट करना है 2 दिन 4 दिन 10 दिन। अभी हमने अपना मैसेज भेजा, तुरंत हमें रिप्लाई आ गया, तो हम मतलब आमने सामने कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उसके बाद हमें वेट नहीं करना पड़ेगा रिप्लाई के लिए। सो हम चीज़ें बहुत आसान हो गई, हम फ्यू मिनट्स में मैसेज कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम चैट कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट things which we do using the computer. So these are the tasks, one computer and so many tasks, just like a genie which can do many things for you at your command. So children, as I told you कि computer is a machine which is just like a genie. genie का मतलब होता है कि आप सभी जानते हैं genie का मतलब क्या होता है। genie को आप एक बार बोलोगे तो वो हमारे लिए कुछ भी करती है। तो यहाँ पे genie एक जादू की तरह वो भी काम करता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर इज़ ऑल्सो लाइक अ जीनी विच डज वॉट एवर वी आस्क टू डू, एंड इट डू मेनी थिंग्स फॉर यू एट योर कमांड। हम जो भी ऑर्डर देते हैं वो सारे काम हमारे लिए कहता है। तो है ना वंडरफुल चिल्ड्रन? सो वी कैन से computer is wonderful. Why wonderful? Because it acts like a genie. It performs any task just like a genie. एकदम जादू की तरह वो काम करता है, और हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो रियली इट्स अ जीनी, और इट्स अ जादूगर एक तरह का है, जो हमारे एक कमांड में हमारे लिए कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी हम करना चाहें। और आजकल तो बच्चों, हम बिना कंप्यूटर के अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक पूरा टाइम वी आर डूइंग आर things, our work using the computer. So in this way we can say computer is just like a genie, or it is the computer is really a wonderful machine. So children, this is what we have studied till now. So children, in this chapter we have studied or understood very well that computer is a wonderful machine, or how it is wonderful, this also we have understood. It does lot of things for us, and it saves our time. It does our work, any work very accurately. It remembers also, चीज़ों को याद भी रखता है. तो in this way it is really a wonderful machine. So let us see what we studied till now. So children, we firstly we studied it can draw and color. We can draw and color using a computer. We can solve sums using a computer. प्ले गेम्स, हम गेम्स खेल सकते हैं. वॉचिंग मूवीज़, हम मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, और म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं. वी कैन टाइप ऑन द कंप्यूटर, वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, इसीलिए हम कंप्यूटर को वंडरफुल कहते हैं. तो वी कैन से कंप्यूटर इज़ रियली अ वंडरफुल machine. So here children, in this chapter we studied all the tasks which are done by the computer, and all these things are told by the Lappy. So once again, Lappy told us lot of things about the uses of computer. So computer is very useful in the useful for us in doing several tasks. For example, we can draw and color using the computer. हम कंप्यूटर को यूज़ करके ड्रॉ कलर कर सकते हैं. We can use computer for doing calculation. हम कंप्यूटर को यूज़ करके calculations कर सकते हैं. We can play games using a computer. हम कंप्यूटर को यूज़ करके गेम्स खेल सकते हैं. Watch movies and cartoons. So children, मूवी और कार्टून हम टीवी पे भी देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे हम अपने चॉइस का, जब जो कार्टून देखना चाहते हैं, सीडी लगा के या डीवीडी यूज़ करके हम देख सकते हैं. सो इन दिस वे चिल्ड्रन, इट इज़ हेल्पफुल इन वॉचिंग मूवीज़ एंड कार्टून्स ऑल्सो. वी कैन प्ले म्यूजिक whenever whichever music we want to play. We can play music, we can dance listening the music, with the music. We can type anything on the computer, और टाइप करके हम इसको सेव करके रख सकते हैं. जब भी हमें ज़रूरत है, we can once again use it, or we can use it again and again. Then children,
sending and receiving is another important thing, and especially in this pandemic time children, when we are not able to reach our friends or relatives, जब हम अपने फ्रेंड्स से मिल नहीं पा रहे हैं, उनको देख नहीं पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कंप्यूटर के थ्रू हम ऑनलाइन उनसे चैटिंग कर सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, हम आमने सामने उनसे बात कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, और इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, हम अगर इस टाइम में हमारे पास हमारे लिए ये सारी हमारी लाइफ ईजी है, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कंप्यूटर. सो ऑफकोर्स वी कैन से कंप्यूटर इज़ very wonderful, computer is one of the wonderful machine. It helps us in lot of ways, it does lot of tasks for us. That is why it is truly said that computer is a wonderful machine. So children, this is all with the chapter. You can learn different words which are which you find difficult here children. So you can see receive का मतलब होता है to get the message. उसके बाद मैसेज का मतलब होता है कोई भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन which you get from relatives, which you may get from friends, या अपने सराउंडिंग से आपको मिल सकती है, तो उस किसी भी खबर को हम मैसेज कहते हैं, जो हमें हमारे सराउंडिंग से मिल सकती है और या फिर हमारे रिलेटिव से मिल सकती है. उसके बाद चिल्ड्रन सेंडिंग का मतलब भेजना और रिसीविंग का मतलब टू गेट. उसके बाद चिल्ड्रन वी हैव अनदर वर्ड, अभी तो देन सॉन्ग्स और राइम्स ऑल्सो यू नो. अटैच्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, अटैच्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ. और उसके बाद स्पीकर का मतलब होता है, अब स्पीकर जो होता है चिल्ड्रन, इट इज़ नॉट एनी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, मतलब वो हमेशा कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होता है. इट इज़ अटैच्ड ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड. जब हमको कंप्यूटर के में स्पीकर की ज़रूरत होती है तब हम उसको अटैच करते हैं. अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हम कोई काम कंप्यूटर के बिना स्पीकर के बिना नहीं कर सकते. तो वेन एवर वी नीड टू हियर टू द म्यूज़िक, हम स्पीकर को अटैच करते हैं, यानी जोड़ते हैं. किससे जोड़ते हैं? कंप्यूटर से जोड़ते हैं. लिसन का मतलब आपको पता है, लिसन मीन्स टू हियर. उसके बाद हमारे पास चिल्ड्रन हैं, वी हैव cartoon, spider, all these you know. Then we have all other words we have discussed. So children, with this we have come to the end of the chapter. I hope you all have understood. Go through the chapter, read it well, and we will be discussing our next topic, that is self-evaluation. So children, in this chapter we have studied whatever we have studied till now, and here we have some important points which we should learn in the chapter. So children, in this chapter we have some important points that are, or which we have understood after reading the chapter. These points are children. So children, these points are, after reading the chapter, I know that. After reading the chapter, these are the points which we have understood or I have understood. So children, I know that a computer can do many things for us. So children, it is one of the important thing about computer that it is a machine, it is made by human being, and there are many machines. There means all the machines are made by man. As we know, all the machines are made by man, but they perform one or the other function. But computer is one of the machine which can do many things for us, जो हमारे लिए बहुत सारे काम करती है. उसके बाद children, I know that a computer can draw, पेंट एंड डू सम्स. कंप्यूटर हमारे लिए ड्राइंग कर सकती है, हम कंप्यूटर यूज़ करके ड्राइंग कर सकते हैं. वी कैन पेंट एंड वी कैन ऑल्सो डू सम्स. हम इससे सम्स भी कर सकते हैं, विच मेक्स आवर लाइफ ईजी एंड विच मेक्स आवर लाइफ फास्ट. अब यहाँ पे वी एग्री विद द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स फॉर अस, सो वी विल पुट अ टिक इन द एग्री बॉक्स. देन वी हैव, आई नो दैट a computer can draw, paint and sum and do sums. So with this also I agree that using a computer we can draw, paint and do sums. Then I know that a computer can show movies and cartoons. So this is also true children. We have, after reading the chapter, we have understood that using a computer we can watch movies and cartoons. So this statement is also true. You will put a tick in front of this statement. Then children, I know that a computer can type words, sentences and numbers. So children, as I told you, keyboard is the part of computer. It is one of the important part of the computer. In the keyboard we have small buttons. कीबोर्ड में हमारे पास छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिस पे हमारे पास नंबर्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स होते हैं. यूजिंग दीज नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स यू कैन राइट
काउंटिंग्स, नंबर को यूज़ करके हम कंप्यूटर में काउंटिंग लिख सकते हैं. वी कैन राइट टेबल्स, वी कैन डू कैलकुलेशंस. यूजिंग द अल्फ़ाबेट्स यू कैन राइट वर्ड्स और सेंटेंसेस. और अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनको यूज़ करके हम वर्ड्स और सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं. सो वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो चिल्ड्रन, and this statement is also true. So after reading the chapter, I know that we can send and receive messages with the help of a computer. So children, do you know in the old time, पुराने समय में, so we agree with this statement also, हम अपने relatives, friends या फिर हमारे neighbors या फिर हमारे आसपास के लोग सबसे हम कनेक्टेड रहते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर. आजकल जब हम किसी के घर आ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन है, देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन ऑल ऑफ अस. तो ये जो सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस वाला कॉन्सेप्ट है, इससे हम अपने आप को उनसे कनेक्टेड रखते हैं. हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और उनके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं. तो दिस इज़ वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ चिल्ड्रन कि पहले ज़माने में आपको पता है कि जब आपके दादा लोगों के टाइम में जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में चिल्ड्रन, उससे भी पहले कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, तो हम जब लेटर्स लिखा करते थे तो हमें बहुत टाइम लग जाता था. कम से कम हमको कभी कभी 4 दिन, 5 दिन या फिर 15 दिन या फिर महीना भर लग जाता था टू रिसीव द मैसेज. तो मतलब इससे पहले, बहुत पहले की बात मैं कर रही हूँ, जब हमारे पास टेलीफोन्स भी नहीं हुआ करते थे. तो इससे क्या होता था कि किसी भी मैसेज का जो क्रेज़ होता है, जो उसका इंटरेस्ट होता है या उसका वैल्यू होता है, वो ख़त्म हो जाए. जब तक हमको मैसेज मिलता था, हम वो उसको ही फ़ायदा नहीं हुआ करता था. लेकिन अब हमें हमारी कोई भी खुशी है, अगर हम अभी खुशी, आई एम हैप्पी, मतलब अब इस टाइम मैं हैप्पी हूँ, तो आई कैन कन्वे माई हैप्पीनेस टू माई रिलेटिव्स और फ्रेंड एट मतलब विद इन सेकेंड्स. हम तुरंत अपने फीलिंग को कन्वे कर सकते हैं और वी कैन शेयर आवर फीलिंग. हम आमने सामने बात करके, कॉन्फ्रेंसिंग करके, वीडियो कॉल करके हम आमने सामने बात करके एक दूसरे की हैप्पीनेस, एक दूसरे की खुशी, बर्थडे विशेज़ या फिर अपने बर्थडे ऑनलाइन बैठ करके आमने सामने बैठ के हम सेलिब्रेट कर सकते हैं. तो द थिंग्स हैव बिकम वेरी ईजी एंड कम्फर्टेबल. इससे हमारी लाइफ बहुत कम्फर्टेबल हो गई है. और द डिफरेंसेस बिटवीन अस, वेदर वी आर in our country or we are in some other country or we are abroad, मतलब हम abroad हैं या फिर अपने देश में हैं, it takes seconds or you can say minutes to convey our feelings or get attached to our friends or relatives. तो हमारी जो दूरी है, ये दूर होते हुए भी हम बहुत पास में हैं और मिनटों में या सेकंड्स में हम अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने हैप्पीनेस को या अपने हमारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम भी है, उसको हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से शेयर कर सकते हैं. तो दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर. ये सारी चीज़ें आज हमारे लाइफ में आसान हो गई हैं, जो कि पहले के ज़माने में बहुत मुश्किल थी, या पहले के समय में मुश्किल थी. डे बाय डे it is becoming very easy. It is only with the use of computer. It has become only possible only with the use of computer. Children, can you imagine अगर आज हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता तो क्या हम ऑनलाइन क्लासेस कर पाते? हम we are doing our classes in the same manner as we used to do in the school. हम वो सारे काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, we are attending classes, we are attending meetings, सब कुछ हम करें. चाहे meetings means your father is attending meeting, your father is working from home, तो हम सारे काम ईजिली कर रहे हैं, जबकि हम अपने घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे भी कि हम किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे काम कोई भी नहीं रुके हैं. वी आर एबल टू डू ऑल आवर वर्क. जो हम पहले करते थे वो सारे हम काम कर रहे हैं, और इट हैज़ बिकम पॉसिबल ओनली विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, computer is very wonderful and it is very useful, and because it has made our life very much easy, fast and possible at the time of pandemic also. इस पेंडेमिक के टाइम में जब हमारे लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल है, हम सब डरे हुए हैं, फिर भी हम अपने वो सारे काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, जो हम करते हैं. इससे हमारी लाइफ, अदरवाइज़ हमारी लाइफ एकदम रुक गई होती, लेकिन अभी हम वो सारे काम कर रहे हैं जो हम पहले करते थे. बस ये है कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन स्कूल से संबंधित रिलेटेड ऑल द वर्क वी आर डूइंग सिटिंग एट होम. सो इन दिस वे चिल्ड्रन, हमारे आवर लाइफ हैज़ बिकम पॉसिबल एंड आवर लाइफ हैज़ बिकम
comfortable also. So children, with this we have come to the end of the chapter. We have completed chapter. Go through the chapter, read difficult words, read chapter, and if you have any doubt, we will discuss it in online classes. So children, we will meet once again in our next video. Till then, stay at home, stay safe.